Good morning, students. Today we are going to start our HTML practical. And first tag is simple and basic tags. Okay. So all you know that first of all we have to write here the angular bracket, open the angular bracket, then write here the HTML, next head, then title, and write your title because this is your first web page. So we have to write here the title first web page. Okay. Then close your title. Close head tag also, then body tag. So dear students, first of all we are doing some basic programs with some basic functions. So first of all we have to write here the body bg tag. Okay, देखिए बॉडी बीजी टैग में जैसा कि आपको बताया गया था कि बॉडी बीजी टैग का यूज कैसे किया जाता है. बीजी मीन्स टू से बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड इज ऑल्सो रिटन विद द बॉडी टैग. सो यू हैव टू राइट हियर बॉडी देन स्पेस bg, that means to say background, and you have to write here color, color. Listen students, you don't write here u because the spell of color color for your HTML language. Equal double quotes and write your color here that you want to in background. For example, I want to take the red color. Okay. Then write your text here. For example, okay. Then close your body tag because it's your simple program, and then HTML. Clear it? Okay. After this, you have to save it. And how can you save it? Click on the file, then click on the save button. Write your file name here because this is your first page. Then we have to write here first .html. It is the extension name of your HTML. So it's a compulsory to all of you. HTML, then click on the save button. Now this file is saved. सेव करने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर, then open your file, then you can press Ctrl plus O and click on the browse button. Then where is your file? I think your file in documents. This is your file. Click on your file. You can say that choose your file and then click on the open button and see here. This is your HTML file. Clear? Because we write .html after name of your file. Then click on the open button and click on OK. See here. डियर स्टूडेंट्स, हमने बैकग्राउंड कलर यूज किया था रेड एंड यहाँ देखिए आप आपकी इस बैकग्राउंड में आपको कलर कौन सा शो हुआ है? रेड. एंड सिंपल जो डाटा आपने यूज किया था, दिस इज अ कंप्यूटर एंड दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज. इसमें आपका जो कलर है वो ब्लैक आया है बिकॉज बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर आपका होता है ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर आपका होता है व्हाइट. क्लियर? सो अब ये देख लीजिए, हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाएंगे वो इसी के अंदर बना देते हैं. जैसे कि हमने अभी यूज किया ओनली बॉडी बीजी कलर. नेक्स्ट आपकी टैग थी टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन, तो वो भी आपका एक बॉडी टैग का ही एट्रीब्यूट था. सो यू हैव टू राइट हियर विद द सेम टैग. हाउ कैन यू राइट? टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 20 and then left margin is equal to 30 and write your data here. We have only this data and write more data here. Okay. एक्चुअली मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है बिकॉज ऑलरेडी मैंने राइट किया हुआ था. So after that body tag and HTML close, and listen one more thing here, body tag you have to write close only one time because these all are the attributes of your body tag. Clear? So after this save it again. हम इसको सेव एज नहीं सेव ही करेंगे बिकॉज हम सेम ही फाइल के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं. देन यू हैव टू राइट हियर एंड देन क्लिक ऑन द F5 button for refresh. Otherwise, you can open again this file with the help of Ctrl plus O. See here.
We have to write more data here. Okay, because we want to write here the paragraph. Then again save it and open your web browser and open this file again, otherwise press F5 button. Click on the browse button. This is your file. Then open and click on the OK button. Now you see here, हमने यहाँ लिया था टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन. देन यू कैन सी यहाँ पर जो लेफ्ट मार्जिन है एंड टॉप मार्जिन, यहाँ देखिए आप, यहाँ से आपको स्पेस शो होगा एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर. अगर मान लो हम इस लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, हमने लिया था लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन. क्लियर? सो अगर मान लो हम इन दोनों ही टैग्स को यहाँ से रिमूव करते हैं, देन आप देखना कि इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी. You have to save it again. Okay. यहीं से हम डायरेक्टली इसको रिफ्रेश करेंगे. नाउ सी है, लेफ्ट मार्जिन नहीं है यहाँ और टॉप मार्जिन था वो भी कम हो चुका है. क्लियर? ये देख लीजिए आप. अगर आप यहाँ पे लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन का यूज करते हैं, देन लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन दोनों ही यहाँ पर शो होंगे. क्लियर? सो दिस इज द लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन. इसी में हम अपने टैग्स का यूज करेंगे. नेक्स्ट हमने यूज की थी H1 to H6 हेडिंग्स. उनको कैसे यूज किया जाएगा, इसी डाटा में हम यूज करेंगे. H1 टैग हमने यहाँ यूज की. हम चाहते हैं कि हेडिंग 1 ओनली ये हो, देन क्लोज योर H1 टैग. ओके, देन दिस इज योर सिंपल डाटा. दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज. ये सिंपल डाटा है. H2 में हमने यूज किया ओनली हाई and then close the H2 tag. Okay, this is your simple data. Again I'm write here H4. H3 हमने यूज नहीं करना, ओनली H4 का यूज करना है. वो आपकी विश है, आप चाहें तो H3, H4, 5, 6, 7, 8 कहीं तक भी ले सकते हैं. अब एक चीज का ध्यान दीजिए यहाँ पर, H2 HI हाई, दैट मीन्स टू से जो H2 में हमने टैग्स लिया है वो यूज किया ओनली हाई. दैट मीन्स टू से कि जो H2 हेडिंग होगी वो ओनली जो हमने वर्ड लिखा है हाई इसकी होगी. देन दिस ऑल सिंपल डाटा. क्लियर? ये सभी डाटा आपका कैसा होगा, सिंपल होगा. सेम एज इट इज हेडिंग वन आपने किसके लिए यूज किया है, दिस इज अ कंप्यूटर. तो जो कंडीशन है वो कहाँ अप्लाई होगी, ओनली इन दिस इज अ कंप्यूटर. एंड दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज. ये आपका सिंपल डाटा होगा. क्लियर इट? सो again display it, save, then refresh it again. See here, अब यहाँ हमने क्या यूज किया था, दिस इज अ कंप्यूटर. ये हमने लिया था H1 हेडिंग 1 के अंदर. आफ्टर दैट दिस इज योर सिंपल डाटा. H2 हमने ये लिया था एंड H4 हमने ये लिया था और ये वाला कंप्लीट डाटा आपका सिंपल था. वन मोर थिंग, जैसे आप हेडिंग्स टैग्स का यूज करेंगे, जैसे आपकी वन हेडिंग कंप्लीट होगी, नेक्स्ट हेडिंग के लिए अपने आप ही डेटा एंटर हो जाएगा. दैट मीन्स टू से वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. क्लियर इट? नेक्स्ट, ये थी आपकी हेडिंग्स. अगर मान लो हम इन हेडिंग्स के साथ एक टैग्स हमने यूज किया था यहाँ पे BR टैग का. सी हेयर, ये जो आउटपुट आपको यहाँ दिखाई दी है, यहाँ पर तो हमने यूज किया है एंटर का. बट ये देखिए, टैग्स के बाद एंटर है, फिर यहाँ भी एंटर है, यहाँ भी एंटर है, बट जो आपकी आउटपुट है वहां पर कहीं भी एंटर टैग का यूज नहीं हुआ है. दैट मीन्स टू से आपका डाटा एक ही लाइन में आ रहा है जब तक आपकी वन लाइन कंप्लीट नहीं होती. और इसके लिए हमने क्या यूज किया था, BR टैग का. सो जहां भी आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा वो नेक्स्ट लाइन में आए, देन यू कैन यूज द BR टैग. ओके, see here, I am write again BR tag here. And one more thing, because it's your non-empty tag, so don't close it. BR tag, then again I am write here BR tag, then again. Clear? Only
हमने इतनी ही टैग्स को br के साथ यूज किया है. देन सेव इट अगेन एंड डिस्प्ले इट. क्लिक ऑन द रिफ्रेश बटन. सी हियर, अब देखिए आपका जो डेटा था br टैग का यूज होने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया. क्लियर. तो ये है आपकी br टैग का यूज. नेक्स्ट अगर हम बात करें कलर का, सेम एज इट इज आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो आपकी हेडिंग्स टैग्स है, हेडिंग टैग या जितनी भी हम टैग्स का यूज करेंगे, जो कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है वो बिटवीन द टैग्स होना चाहिए. मींस टू से अगर मान लो हमें ओनली टी को H1 के अंदर लेना है, देन आपको क्या करना होगा, ये वाला डेटा यहाँ से हटाना होगा. हमने लिखा टी ओनली और उसके बाद सी हियर, मान लो हम ऐसे लिखना चाहते हैं हेडिंग 1 में ओनली टी चाहिए, देन हिज टी के बाद HIS इज माई फर्स्ट वेब पेज. ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए और जो विदाउट हेडिंग के हो. तो ये देख लीजिए आप, जितना भी डेटा, जितना भी कंटेंट आप बिटवीन हेडिंग्स लेंगे, यहाँ इसके और इसके, वही डेटा की जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होगी सिर्फ उसी डेटा के ऊपर जिस डेटा को आपने टैग्स के बिटवीन लिया है. क्लियर. अब देख लीजिए वन मोर टाइम, सेव इट, देन अगेन रिफ्रेश इट. नाउ सी हियर. क्लियर. अब यहाँ पे क्या हुआ, ओनली जो टी है वो आपका हेडिंग 1 के अंदर है. दिस इज योर सिंपल डाटा. इफ यू वांट टू टेक दिस डाटा देन यू कैन टेक, अदरवाइज इट्स योर चॉइस. ओके. देन नेक्स्ट आपको हेडिंग 2 लिया था यहाँ पे, देन हमने हेडिंग 4 यूज किया था. क्लियर. नेक्स्ट आपकी जो टैग है, दिस इज योर फॉन्ट टैग एंड वी हैव आल्सो 3 attributes of your font tag. The first is font size, color and face. So we have to use only 2 tags and third tag you have to use yourself. यहीं पे ले लेते हैं, मान लो हम यहां यूज कर लेते हैं हम फॉन्ट टैग का. दिस इज योर फॉन्ट साइज इक्वल डबल क्वाट्स. मान लो हमने साइज लिया कितना, 4. क्लियर. एंड ऑल्सो यू वांट टू टेक द कलर, कलर इक्वल, कलर मान लो हमने इसका क्या लिया, ब्लू. एंड वन मोर थिंग, अब ये देखिए आप, यहाँ पे आपने फॉन्ट साइज यूज किया 4, कलर यूज किया ब्लू, सॉरी. ओके. एंड हम चाहते हैं दिस इज, सिर्फ जो हमने यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं दिस इज, इनका ही साइज 4 हो एंड कलर इनका ब्लू हो. देन आपको क्या करना होगा, इसके बाद ही जस्ट आपको फॉन्ट टैग को क्लोज करना होगा. क्लियर इट. ओके. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपकी फॉन्ट टैग क्लोज हो गई है, दैट मीन्स टू से जो बाकी का ये वाला डेटा है ये आपका बिल्कुल सिंपल डेटा ही शो होगा आपको. क्लियर. ये देखिए यहाँ पर. ओके. तो उसके बाद ये फॉन्ट टैग आपकी क्लोज हुई और हम इसको सेव कर लेते हैं अगेन एंड देन डिस्प्ले इट अगेन. सी हियर, यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज, आप ध्यान से देखिए इसका जो साइज है वो भी इस वाले डेटा की बजाय थोड़ा सा बड़ा है. आप साइज ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं देन आप साइज का जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं. मान लो हमने यहाँ पे 4 लिया है, देन यू कैन टेक इट 7. ओके. अब मान लो हम लेना चाहते हैं यहां तक और इस वाली लाइन के बाद हमने फॉन्ट टैग का अगेन यूज किया. सी हियर, फॉन्ट कलर, ओनली हमने कलर चेंज करना है. देन वी हैव टू राइट हियर फॉन्ट कलर इक्वल योर कलर नेम. फॉर एग्जांपल वी वांट दिस प्रोग्राम इन ग्रीन कलर, ग्रीन एंड देन क्लोज. एंड ग्रीन कलर आपको लेना किसका है, ये देखिए अगर आप यहाँ पर फॉन्ट टैग का क्लोज करेंगे, फॉन्ट टैग यूज करेंगे तो ये जितना भी डेटा है इस सभी का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन. एंड हम यहाँ पर इस टैग को क्लोज भी कर देते हैं. सो ये बिटवीन का जितना भी डेटा होगा इट विल बी इन ग्रीन कलर. क्लियर. एंड देन अगेन क्लिक ऑन द सेव बटन एंड देन ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड रिफ्रेश इट अगेन. नाउ सी हियर, ये देखिए ये 2 लाइंस का जो कलर हमने यूज किया था वो ग्रीन कलर यहाँ पर शो हो गया है. क्लियर. सो नेक्स्ट इज, ये तो था ग्रीन कलर, भी जितना भी डेटा आपको लेना है उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज योर कलर. वन मोर एट्रीब्यूट इन दिस टैग वी हैव एंड दिस इज द फेस. फॉर एग्जांपल वी हैव टू टेक द फेस टैग इन दिस एट्रीब्यूट. फेस टैग का मीनिंग क्या होता है, फेस मीन्स टू से चेंज द स्टाइल ऑफ योर टैग एंड स्टाइल मीन्स टू से, ये देखिए फॉर्मेट में हम फॉन्ट जाते हैं, जो फॉन्ट स्टाइल हमारे पास होता है ये देखिए यहाँ, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हमारे पास स्टाइल है. एंड यू नो दैट
हम यहाँ से जो भी स्टाइल लेंगे, जैसे कि एक स्टाइल है यहाँ पर सिस्टम, सी हियर, अभी आपको अपना डाटा शो होगा किस टाइप से शो है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ये सिस्टम, तो ये देखिए इस टाइप से आपका डाटा शो होगा। तो ये हमने यहाँ से लिया है, आपको ओके नहीं करना है, ओनली टैग के अंदर, टैग के बिटवीन आपको ये चीज डालनी है। सिस्टम डबल क्वाट्स एंड फोन टैग, ये जो यहाँ क्लोज थी हम इसे यहाँ से इरेज करते हैं एंड क्लोज हियर द फोन टैग। क्लियर? So see here again, font size is equal to 7, then color is equal to blue and face is equal to system, and this condition is applied between this complete data. Clear? And here is font close, that means to say only यहीं तक ये conditions apply होगी, आगे का जो data है ये बिल्कुल simple आपका show होगा। Then save it again and click on the Internet Explorer and refresh it again. Now see here, size it also change and also change of your text style. Clear it? So इसी टाइप से आपका ये टैक्स का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नॉर्मल टैक्स का यूज किया है कौन कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल बीजी कलर, and it is the attribute of your body tag, and we have the top margin and left margin also the attribute of body tag, and after that we have to use h1 to h6 headings, and you can take any type of heading according to your choice. And next we have to use font tag also, and we have three types of attribute of your font tag. The first is font color, size, and the last is face, and face is used for take any type of style of your text and font. Clear? So dear students, आज आपको प्रैक्टिकल इतना ही करना है, and try to do this in your laptop, and if you have any PC then try to do in PC. Okay, thank you.